Good morning, everyone. Morning, sir. Start. So now, as today class. Uh, Before starting, I must say today is the first class, so it's too much of an interacting class. You need to interact. In this semester, we are not going to learn different software. We have to use these three software like CorelDRAW, Photoshop, and Adobe Illustrator, and making different kind of branding and products or images, create some images. Sir, graphic design may be a visual communication through which we can interact without any person help of a person. जैसे कि ग्राफिक डिजाइन का हेल्प होता है कुछ मैसेज देने के लिए या फिर कुछ टाइपोग्राफी के फॉर्म में मैसेज देने के लिए काइंड ऑफ मैसेज देने के लिए मोस्टली यूज होता है सर ग्राफिक डिजाइन का जिसका अलग अलग फॉर्म है जैसे विजुअल कम्युनिकेशन हो गया या फिर इलस्ट्रेशन का फॉर्म हो गया या टाइपोग्राफी का फॉर्म हो गया या फिर फोटोग्राफी का फॉर्म हो गया Hmm. So visual that means visual merchant visual that कम्युनिकेशन means graphic design is a visual communication. Everybody is satisfied with this answer, So, guys, or Yes, sir. anybody else Yes, want to say something else? the graphic design is a topographical study also. To use a suppose we can draw someone's sketches of a human portrait and to Yes, display. it may be the illustration, it may be the typography, it maybe lots of things. It's maybe all the things you used in element of design and principle of designs. It's all used in this process of making any graphics or any type of visual communication. So it's all used in this subject. Designs is a visual communication generally. It's a design is also a language. In history, there are so many evidence of graphics and so many evidence of different type of evaluation in depicting the pictures. जाते हो तो वहाँ पे किसी मंदिर में पुराने जमाने की मंदिर और बहुत सारे जगह पे आप डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर में देखते होगे कि किस तरह से वो लोग डिपिक्ट करते थे अपने कल्चर को और सारा कुछ इज डिपिक्टेड थ्रू द illustration or is depicted through the architecture. So why graphic designs is important for you guys? Why graphic design important for you? Tell me. सर हम किसी भी इलस्ट्रेशन को हम ग्राफिकली ही कस्टमर को समझाने के लिए हम भेज सकते हैं तो उसमें और अच्छे से उसका डिटेलिंग हम दिखा सकते हैं एज कम्पेयर टू हैंडमेड इलस्ट्रेशन कोई भी प्रोडक्ट हम ग्राफिकली ही डिजाइन करके प्रेजेंट कर Yes, right. स्टार्टिंग And और कुछ फ्लैट स्केच ये सब हमारा डिजिटली hmm. सर ग्राफिक डिजाइन में That's a part of fashion सर design. ग्राफिक डिजाइन के थ्रू एक हाँ कम्युनिकेशन बोलो प्रिंसु ग्राफिक डिजाइन के थ्रू सर ग्राफिक डिजाइन के थ्रू किसी भी फील्ड में कहीं पे भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिना वहाँ प्रेजेंट हुए सर एक ऐसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जैसे एक लोगो का सर तो अगर कोई लोगो होता है जैसे हॉस्पिटल का लोगो बना होता है तो एक ग्राफिक डिजाइन किया हुआ लोगो होता है जो कि हमें समझ में आता है जिसके कारण हम बिना किसी पर्सन की मदद लिए वो चीज़ समझ जाते हैं तो बेसिकली द नीड ऑफ ग्राफिक डिजाइन इज टू illustrate anything with the help of some logos or typography or illustration. राइट राइट और कोई कुछ प्रिंसु कुछ बोल रही थी So to represent the garment for the model study, so the like celebrities. it's already for it will use for digital newspaper nowadays because news all the newspaper are available in the website and somewhere. We are using the graphic designs. It's a part for visual communication. As you know, it's very important for your portfolio. It's very important for magazines. You can design any magazines. Inside the magazines there are
lots of things you need to manage, picture, images, or the text form, or we can use in any kind of website. It's actually we made to attract client or our customer, right? Nowadays everyone using the Instagram, everyone using the Facebook, and so many social media website, and so many designers have their own website. Nowadays graphic design is a very important and crucial part of the human life, because everyone wants to show something, everyone have some purpose for display anything. जैसे आप अपना पिक्चर ही पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो एवरीबॉडी वांट्स लाइक्स, देयर इज नो ऑप्शन फॉर डिसलाइक. तो एवरीवन हैव अ डिफरेंट Yes, sir. पर्पस फॉर डिस्प्ले देयर पिक्चर्स. समटाइम पोस्ट करने के बाद देखते भी हो ना कि अभी तक लाइक्स नहीं हो रहे हैं. हाँ सर. तो आपका पर्पस अलग हो सकता है, बिजनेस कम्युनिकेशन का पर्पस में भी डिफरेंट. And you know, nowadays lots of brands and lots of competition is there in the market. So in garment industry there are so many companies which want to promote their product. They all have the same product, but they all have a different identity. लाइक प्रोडक्ट में भी अभी तो इतने सारे प्रोडक्ट है, वी कांट कैटेगराइज कि ये कंपनी ये काम नहीं करती. सारी कंपनी में सेम टाइम के गारमेंट बनते हैं. फॉर एग्जांपल विल टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल, आईफोन, और वी टेक द एग्जांपल फॉर सैमसंग. बोथ आर सेलिंग द स्मार्टफोन, बट दोनों की आइडेंटिटी अलग है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म. तो दोनों का विजुअल कम्युनिकेशन में भी द डिफरेंट, द पर्पस में भी द डिफरेंट, द क्लाइंट में भी द डिफरेंट. दोनों का एडवर्टीजमेंट सेम नहीं होता, अलग होता है. आप लोग बता सकते हो हम लोग ग्राफिक डिजाइन को कौन कौन से प्लेस किस तरह से यूज कर सकते हैं? सर एवरीवेयर. Sure. एनीवे. सर कोई भी एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर पे कुछ भी के लिए ग्राफिक डिजाइन, मैगजीन, In डिजाइन, प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, सब डिजाइन. यस, पैकेजिंग. illustration art, यस, इलस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिक्स. तो सब डिजाइनिंग में ही Logotype हो गया, sir, it may be a logotype, it may be a symbol. We can use it as a word mark or a letter mark or a combination mark or an emblem, sir. एवरी ब्रांड हैव देयर ओन आइडेंटिटी. तो Yes, आपको yes, देखना है कि sir. ब्रांड आइडेंटिटी में वी आर यूजिंग ऑल द डिजाइन एलिमेंट्स. व्हाट आर द डिजाइन एलिमेंट्स एंड डिजाइन प्रिंसिपल? Sir, element are, sir, space, size, color, line, texture, value. एंड प्रिंसिपल्स, रिदम, एम्फेसिस. Yes, sir, rhythm, emphasis. rhythm, ये सब पढ़े emphasis, होगे ना? unity. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं समझता हूँ कि दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, तो ये सब आप लोग जानते हो. Yes. तो ये सारी चीजों को हम लोग यूज करेंगे. तो एलिमेंट ऑफ डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ visual communication, or is a part of, there is two kind of communication is there now. One is tangible and one is intangible. What do you mean by tangible communication or intangible communication? Anybody can say first, what is the meaning of tangible and intangible? So tangible means anything which we should touch and feel it is known as tangible, and intangible which we can only see and don't feel it or touch it. Feel But it, but tangible, In brands, we tangible part may be the symbols, maybe the graphics, logos are colors. So symbol हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं. Graphics also, colors we can change, we can feel. और intangible parts में क्या क्या आएगा? sir, magazine हो गया, newspapers, या फिर जो भी जो print होके आता है, sir. Like every brand have something Print design. called promise
यू जैसे आप लोग, एक एग्जांपल देता हूँ, एक शूज है जो हमें बेचना है मार्केट में, उसकी ब्रांडिंग नहीं है, कोई भी ब्रांड उस पर लगा नहीं है, बट हम जानते हैं कि वो काफी अच्छा शूज है, हमने खुद पर्सनली यूज किया है, लेकिन बाकी लोग क्यों खरीदेंगे? वाई पीपल्स आर बाइंग द शूज? द प्राइस इज 3000 एंड द नाइकी प्राइस इज आल्सो 3000. So everyone go for the Nike shoes instead of without branding, right guys? बिना ब्रांड का खरीदोगे या नाइकी का खरीदोगे? The nice, the branded. Most of you guys select the Nike shoes. Why? क्योंकि क्वालिटी One अच्छा is रहता है good, इसमें। but one shoes is good. Maybe the good, very good shoes. Maybe it's more durable than the Nike shoes. But हमें विश्वास कैसे होगा? हाउ कैन वी फेथ ऑन दैट शूज अगर उस पे कोई ब्रांडिंग नहीं लगी है? और नाइकी के शूज पे ब्रांडिंग लगने से हम लोग उस पे विश्वास कर सकते हैं, राइट गाइस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ब्रांडिंग इज मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन. हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है ना, एडिडास का खरीदते हैं और इसका पूमा का खरीदे या कोई भी ब्रांड का खरीदे, तो ये लगता है कि हाँ ब्रांडेड है, 7000 8000 का है तो चलेगा, भले वो एक साल में खराब हो जाए, Yes, लेकिन sir. वी हैव अ ट्रस्ट. लेकिन जिस पे ट्रस्ट नहीं है, एक मोची भी अच्छा बना सकता है शूज, बट वी कांट बाई इन 7000 रुपीज. सेकेंड थिंग है, तो ये जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस इज इंटेंजिबल पार्ट, वी कांट सी, बट हम लोग विश्वास करते हैं. सेकेंड पार्ट इज द पर्सनालिटी ऑफ अ ब्रांड. जैसे एप्पल का पर्सनालिटी है ना, भले वो एमआई फोन जितना काम ना करे और बहुत सारी चीजों में पैसे भी लगता था पहले, अभी नहीं पता, मैं यूज नहीं करता एप्पल, बट उसकी पर्सनालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑल द कंपनीज एग्जिस्टिंग इन मार्केट, राइट गाइस? Yes, sir. It's create a different kind of personality and it's have a different position in the market. It's categorized as high class people, and also we somebody is emotionally connected with that brand कि हमें चाहिए तो एप्पल फोन ही चाहिए. We have the feeling and emotions. We can imagine so many things कि अगर एप्पल का पिक्चर क्लिक किया हुआ है तो दैट्स क्वालिटी इज वेरी नाइस. So these are the study we have to think a lot before making any kind of branding. आप लोग इन्फोग्राफिक्स का नाम सुने हो? इन्फोग्राफिक्स, जिसमें हम लोग के पास जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, डेटा अवेलेबल होते हैं, उस अवेलेबल डेटा को वी कैन चेंज इनटू द चार्ट्स एंड वी कैन चेंज इनटू द विजुअल्स डेटा. तो ये भी ग्राफिक डिजाइन का पार्ट है. और यू ऑल्सो नाम सुना होगा यूजर इंटरफेस डिजाइनर और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर. Anybody listen this name? UX designer, UI designer. Yes, sir. सुना है कभी? Yes, sir. Yes, sir. कुछ आइडिया है Yes, sir. दोनों में Yes, sir. डिफरेंस क्या होता है? Yes, sir. बताओ, बताओ दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज यूएक्स और यूआई? Sir, सर UI जो है यूआई यूजर इंटरफेस इंटरफेस हो गया, जो कि और यूएक्स ऐप रहता है। यूएक्स ऐप रहता है, नहीं दोनों ऐप में यूज होता है, वेबसाइट में यूज होता है. बस वेबसाइट अलग पर, और आप आप ये देखो, सिंपल तरीका है समझने का. User experience or और क्या तुषार बोलो? user experience. हाँ वो तो फुल फॉर्म हो गया. सर यूआई डिजाइनर जो है वो यूजर मतलब इंटरफेस डिजाइन. तो यूआई डिजाइनर जो है वो डिसाइड करता है कि कोई भी अगर वेब पेज या फिर वो ऐप है जो जब खुलेगा किसी साइट में, तो वो सर क्या उसके अंदर डिजाइन होंगे, कैसे वो दिखेगा सर. So UX or UI designer is just like a tangible or intangible kind of things like look and feel.
जो लुक होता है हम लोग यूआई डिजाइनर में यूज करते हैं, और जो फील होता है वो यूएक्स डिजाइनर में फील करते हैं। यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस। अब वेबसाइट कोई एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं तो वो कैसा दिखेगा, मतलब ओवरऑल द लुक ऑफ द वेबसाइट इज अ पार्ट ऑफ यू इन यूजर इंटरफेस डिजाइन। इंटरफेस कैसा होगा, मतलब इट्स ऑल द ओवरऑल लुक, विच टाइप ऑफ कलर, विच टाइप ऑफ टेक्स्ट you are writing down all the things and what are the looks and user experience कहने का मतलब है it's we are going to make for certain customer and clients, और कस्टमर और क्लाइंट्स की नीड्स क्या है, उनके लिए यूजर फ्रेंडली कैसे होगा। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम सब लोग यूज करते हो ना, तो उसमें फील क्या होता है, जैसे आप कोई पिक्चर डालते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इनहेंस योर इमेजेस इन बेटर वे। तो वो समझता है कि आप लोग की फीलिंग क्या है और आप लोग क्या चाहते हो उससे कि हमारी पिक्चर कैसे अच्छा दिखे, तो उन्होंने बहुत सारे फीचर्स डाल दिए हैं so that you can edit your pictures before posting। क्वेश्चन है हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइन ब्रांड। हम लोग ने पिछले सेमेस्टर में काफी आप लोगों ने बनाया है, ब्रांडिंग बनाई है, तो उसके पीछे हम लोग इतना कुछ Yes, सोचे sir. नहीं थे। जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग योर सॉफ्टवेयर, बट डिस हम लोग जो Yes, बनाए sir. उसमें हम सारा रिसर्च वर्क होगा, किसके लिए क्या है, कस्टमर कौन सा है, क्लाइंट कौन सा है, व्हाट इज द हिस्ट्री, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट, how it's important and what is the purpose of making this, learning so many things in graphic designs, like we have so many text and font, how we'll use the text and font in डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कैसे हम लोग एक ही फॉन्ट को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन कौन आप लोग फॉन्ट यूज करते हो, तो एनीबॉडी हैव आइडिया कि आप कौन सा फॉन्ट यूज करते हो, क्यों यूज करते हो, और व्हाई यू आर प्लेसिंग दैट फॉन्ट इन एनी प्लेस। तो नाउ अब हम लोग जो भी काम करेंगे हम लोग मैं सबसे पूछ सकता हूँ कि आप जो भी डिजाइन बना रहे हो उसमें कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो और क्यों यूज कर रहे हो। तो आज के बाद जो भी आप लोग काम करोगे कंप्यूटर में, तो यू नीड टू रिमेम्बर योर फॉन्ट्स नेम, you need to remember why you put the colors, why you create the page, and how you create the page. Lot of designer earning through freelance work. There are so many websites like freelancer.com, Upwork is there, ग्रू करके एक वेबसाइट है, देन फीवर इज अ वेबसाइट जहाँ पे लोग फ्रीलांस में काम करते हैं और आवरली पैसे कमा सकते हैं, घर बैठे बैठे भी कमा सकते हैं थ्रू द कंप्यूटर एंड मेकिंग ऑल द थिंग्स लाइक ब्रांडिंग और क्रिएटिंग द एडवर्टीजमेंट फॉर डिफरेंट पर्पस। nowadays so many advertisement is on the naukri.com, other places, like somebody wants someone to post सम गुड कंटेंट ऑन द फेसबुक और सोशल मीडिया, उसके लिए भी आजकल एक डेजिग्नेशन हो गया है। अगर आपका ग्राफिक डिजाइन अच्छा है तो आप उसमें भी जा सकते हो और बहुत आसानी से अपना इंटरेस्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब नाउ डेज, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि जो भी पोस्ट हो उस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स, और हाउ will communicate our visions to the customer, and how will attract so many customers through our visual arts। तो आप किसी भी फील्ड में रहो, आप जैसे फैशन डिजाइन में आप लोग फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन में यू हैव टू शो योर वर्क, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। बिकॉज हो सकता है बहुत सारी चीज आप इंटरव्यू में बोल ना पाओ, लेकिन आपका पोर्टफोलियो आपका हेल्प करेगा टू कम्युनिकेट। अगर आपका डिजाइन अच्छा है और आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, अगर आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हो बोलने में या कम्युनिकेट करने में, तो योर पोर्टफोलियो कैन टेल एवरीथिंग। आप किसी की पर्सनालिटी भी पता कर सकते हो थ्रू देयर पोर्टफोलियो।
है ना, कुछ तो इमेज आता है। जैसे आप रेज्यूमे बनाते हो, रेज्यूमे में लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, हाउ यू मैनेज, व्हाट टाइप ऑफ फॉन्ट यू आर गोइंग टू यूज, वेयर यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ कलर्स, सो कलरफुल। पहले एप्पल का जो लोगो था उसमें 7-8 कलर यूज होते थे। इट्स लाइक बिग्योर, जो आपने सुना होगा 7-8 कलर से मिलके बनता है, वैसे कलर यूज होते थे इस 70s के टाइम पे। लेकिन अभी देखते हो एक ही कलर यूज होता है, बहुत सिंपल एंड वेरी लेस एंड सिंपल। So one thing is very important for graphic design in today market is less is more, less is more, less but impactful। नहीं नहीं, बहुत सारे आप एडवर्टीजमेंट वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत कम चीजें होती है, बट यू कैन अंडरस्टैंड सो मेनी। सर क्योंकि आजकल सारा पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन सब डिजिटली होता है, इसी वजह से वो भी और है। डिजिटली एक्चुअली आप जल्दी पहुंच सकते हो लोगों के पास बहुत कम टाइम में, और ऐसे नॉर्मली जाने से बहुत टाइम भी लग सकता है। तो ब्रांडिंग ये भी है, हमारा पहले लोग इजिप्ट से स्टार्ट हुआ है। ब्रांडिंग इजिप्ट से स्टार्ट हुआ है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम देखें तो हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले जो ब्रांडिंग था इजिप्ट से स्टार्ट हुआ। वहां जो एनिमल्स होते थे, हाँ हाँ। वो लोग अपने एनिमल्स को डिस्टिंक्ट मतलब अलग दिखाने के लिए, सब अपने अपने एनिमल्स को अलग पहचानने के लिए उन लोग का एक एक सिंबल बनाया करते थे। तो वहां से ब्रांडिंग हमारा स्टार्ट हुआ है। यस, उनका राइट एक स्किन राइट। कलर और इट्स इन हाँ, वो जो एनिमल वाली बात कर रहे हो वो 1500 एडी के टाइम में हाँ, शुरू जो हुआ था, स्टार्टिंग वो हिस्ट्री में ही दिखाई 520 है। हाँ, इयर्स एगो। सो विल स्टार्ट। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ ब्रांड इवैल्यूएशन, और व्हाट इज द मीन ऑफ ब्रांड। ब्रांड को पहले ब्रांडर बोलते थे। ब्रांडर इज अ वर्ड दैट्स मीन्स, ब्रांडर इज अ वर्ड दैट मीन्स बर्न। ठीक है। तो 1950 एडी, इट्स 11,000 ईयर एगो, हम लोग कहीं पे आग जलाते थे इस सब पीस ऑफ वुड को, तो उससे हम लोग डिनोट करते थे कि हम लोग का कोई कम्युनिटी वहां पे रह रहा है, और वो कौन सा कम्युनिटी है उसको यूज करते थे। उस आग को यूज करते थे हम लोग अपना कम्युनिटी को शो करने के लिए। और ब्रांड का मतलब होता है ब्रांडर मीन्स बर्न, तो वहां से स्टार्ट हुआ था ब्रांड की ब्रांड शुरू हुआ था। आफ्टर दैट ऑन द 1300 एडी वुडन टॉर्च इज देयर। वुडन टॉर्च कहने का मतलब है, जैसे मसाल होता है ना, मसाल एक डंडे में होता है, उसमें ऊपर कुछ बांध देते हैं, उसमें आग लगाते हैं, तो इस कॉल्ड एज ए वुडन टॉर्च। इस स्टार्टेड इन 1300 एडी, 720 ईयर्स एगो। तो उस उससे हम लोग ब्रांडिंग अपना शुरू किए। कहीं भी कोई पर्सन है वो दिखा सकता है अपने आप को कि कौन कहाँ है। पहले जंगल में पता नहीं चलता था ना। देन जैसा प्रिंसू बोली कि एक ही गांव में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हर के घर में लोग एनिमल पालते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना इज डिफिकल्ट कि कौन सा जानवर किसका। अगर हर के पास मान लो 20-25 गायें हो या 20-25 जानवर हो अलग अलग, तो उनको पहचानना बहुत डिफिकल्ट है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा रोज अलग करना, और सबको कंफ्यूजन होगा, फिर झगड़ा होगा। तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी 1500 एडी में कि हाउ मेक आवर कैटल डिफरेंट। तो वो लोग क्या करते थे, कैटल्स के ऊपर बर्न करके एक मार्क बना देते थे। बर्न करके भी हो सकता है, उसके बाद अगर बर्न करना बंद कर दिया तो डिफरेंट मेथड से वो लोग बना सकते थे। इट्स 520 ईयर्स एगो हम लोग ऐसा करना शुरू किए थे, ताकि हर कोई अपना कैटल्स को और एनिमल्स को पहचान ले कि वो कौन सा एनिमल किसका है। उसके बाद शुरू हुआ कि हम लोग झंडा यूज करने लगे। झंडा मतलब फ्लैग। जैसे एवरी कंट्री हैव अ डिफरेंट फ्लैग, है ना। तो कौन सा इंडिया का है, कौन सा पाकिस्तान, चाइना और अदर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री, दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैग। ये फ्लैग वाली भी चीज काफी पुरानी है। उसके बाद हम लोग शुरू किए क्वाइन से। हर कंट्री का अलग अलग क्वाइन होने लगा, तो उससे पता लग गया कि कौन सा लोग कहाँ का है। उसके बाद जाके हम लोग का स्टार्ट हुआ 1820 में।
जब हम लोग प्रोडक्शन और शिपमेंट स्टार्ट किए, जब हमारा प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग मार्केट में आया, हमको लगा कि एक ही जगह पे जहाँ पे सुविधा है वहां पे एक प्रोडक्ट को हम लोग बना के दूसरे जगह भेज सकते हैं ना। कुछ चीज की सुविधा किसी कंट्री में ज्यादा हो और किसी कंट्री में कम हो, जहाँ पे चीप लेबर चार्ज होता है वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और जहाँ पे लेबर चार्ज ज्यादा होगा वहां पे लोग वहां से शिप कर देते हैं वहां पे बेचने के लिए। मैक्सिमम कंट्री इंडिया से अपना गारमेंट क्यों बनाती है? इसीलिए बनाती है क्योंकि यहाँ पे लेबर चार्ज कम है। वो 200 रुपये के गारमेंट यहाँ से बना के ले जाएंगे तो वहाँ पे 6,000 में बेच सकते हैं। लेकिन नहीं, वो अमेरिका और यूरोप में बनाएंगे तो उसी का कॉस्ट आ जाएगा। जो 200 में यहाँ पे शिप करते हैं हम लोग, वहाँ पे वो बनाने का कॉस्ट 2,000 आ जाएगा। तो 2,000 का 6,000 में बेचेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, जहाँ की 200 में खरीद के 6,000 में बेचेंगे। तो ये स्टार्ट हुआ था 1820s में। प्रोडक्शन जब हमारा चालू हुआ, मशीनरी बनना शुरू हो गया और शिपमेंट होना शुरू हो गया, तो वी नीड सम आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर आइडेंटिफाई आवर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग आजकल के जमाने में लोगो बोलते हैं। देन उसके Yes, बाद sir. विल मूव टू द क्वालिटी, सिंबल ऑफ क्वालिटी। जैसे लोगो है वो इट्स काइंड ऑफ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। क्योंकि आप लोग क्वालिटी कैसे पता करोगे? देयर आर शूज का इतना सारा ब्रांड है, मोबाइल का इतना सारा ब्रांड है, और कंप्यूटर का इतना सारा ब्रांड है। तो हम अब जैसे जो है, तो कोई अपना एडवर्टीजमेंट ब्यूटीफाई के लिए करता है, कोई अपना एडवर्टीजमेंट क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए करता है। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ, एप्पल इज अ डिफरेंट एमआई और सैमसंग और क्या ओप्पो और क्या क्या अलग अलग है। उसी तरह 90s 70s में हुआ द रजिस्ट्रेशन पार्ट, ट्रेडमार्क, जिसको हम लोग ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क मतलब हम लोग रजिस्टर करवा सकते हैं कि हमारा जो कंपनी है वो कोई और यूज नहीं कर सकता अगर हम यूज कर रहे हैं। जैसे अभी कॉपीराइट होता है, वो एक ब्रांड ने अपना यूज किया, अगर आप उसको कॉपीराइट और ट्रेडमार्क नहीं करवाते हो जब तक, तो कोई और भी आपका सेम लोगो यूज कर सकता है कोई भी। अगर हम कॉपीराइट करवा लेते हैं तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर क्रिएशन। फिर 1900 के टाइम पे शुरू हुआ यूनिक नेम का कल्चर। यूनिक नेम होना चाहिए बिजनेस का। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटीज देयर। एंड 1928 इट्स स्टार्टेड। इस तरह से हुआ, एक बुक लिखा गया, उसमें लिखा गया था कि हम लोग कस्टमर को कैसे परस्यूड कर सकते हैं, मतलब इमोशनली हाउ कैन विल कनेक्ट द कस्टमर थ्रू आवर लोगो और सिंबल्स और आइडेंटिटी। देन अगेन जब मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, टेलीविजन इन द मार्केट, मास ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ 1950 में टेलीविजन आया। तो उस समय हम लोग टेलीविजन पे कैसे क्या दिखाएंगे वो सारा कुछ शुरू हुआ। 1960 में वी आर कनेक्टेड थ्रू इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस के थ्रू अपने ब्रांड को कनेक्ट करना शुरू हुआ। 1988, आफ्टर दैट 1988 नाइकी एंड एप्पल अपना अपना ब्रांड को अपना एडवर्टीजमेंट शुरू किए सोशल मीडिया पे थ्रू ब्रांड कैरेक्टर, कि किस तरह का करेक्टर है, और थ्रू एप्पल इज डिनोटिंग द सोशल मैसेजिंग, कि सोशल मैसेज देख के हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से। हाँ, Yes. तो कैसे हम लोग ब्रांड को अपना प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि हम लोग उस समय प्रोडक्ट दिखाते थे। उस समय जनरली जैसे नाइकी का होता था, जैसे आजकल किसी आदमी को रखते हैं ना किसी ब्रांड आइडेंटिटी के लिए, जैसे अमिताभ बच्चन किसी ब्रांड का हो गया जो उस बनाए ब्रांड को शो करते हैं। तो नाइकी के टाइम पे एक आदमी को दिखाया गया था, वो 62,000 माइल्स पूरे लाइफ में चला था। उसको दिखाया गया था वो नाइकी के प्रोडक्ट को पहन के उतना माइल्स चल सकते, इस थ्रू द कम्युनिकेशन। और एप्पल ने शुरू किया था सोशल मैसेजिंग, कि मैसेज ऐसा सोशलाइज दिया जाए ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं। तो
ये जो कहानी थी पूरी, इसमें कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। फर्स्ट विल आइडेंटिफिकेशन मार्क से स्टार्ट किए, फिर उसका क्वालिटी सिंबल पे गए, क्वालिटी कैसे होगा। देन विल मूव टू द फंक्शनल बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, देन विल मूव टू द इमोशनल बेनिफिट, एंड देन लास्ट में ब्रांड पर्पस, हमारा पर्पस क्या है ब्रांड को क्रिएट करने के लिए। एंड देन विल क्वेश्चनिंग आवर सेल्फ कि why we are making the branding, how we are making the branding, on what we, why, what and how। तो इन सारे का आंसर्स आपके पास होने चाहिए जब भी आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो। कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल मीट। Okay, sir. ओके, sir. थैंक यू एवरीवन। और अटेंडेंस भेज देना Okay, व्हाट्सएप sir. ग्रुप में ताकि Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक Thank यू you, sir. एवरीवन। Thank you, sir. Thank Sir, you. भेज दिए, sir.